اللہ کی ذات بڑی ہے. دوبارہ کہوں گا الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں عمران خان کو کوئی نہیں چھوڑے گا. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ امر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. تمام تر فسطائیت، تمام تر دبانے کے حربوں اور تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے فائنل کال کا اعلان کر دیا ہے. کپتان نے کہہ دیا ہے کہ ٹائیگرز اور عوام تیار رہیں. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام تر اراکین اسمبلی جنہیں گرفتار کیا گیا تھا پروڈکشن آرڈر کے تحت دوبارہ انہیں قومی اسمبلی پہنچا دیا گیا ہے. کل دھواں دار خطابات ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. شروع میں آپ نے ایک چھوٹا سا جو ویڈیو گلمپس دیکھا، شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹے ہو جائیں، پٹھے پہ جائیں، عمران خان کو نہ چھڑوا سکتے ہیں ہم سے، نہ عمران خان کو ہم چھوڑیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ متعدد کیسز ہیں، ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں، متعدد وائرل ٹویٹس اور بیانات. اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھ رہے ہیں. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا کر لیجئے. اور ویڈیوز کا چیک مارک آن کر لیجئے. زیادہ زیادہ کامنٹس کرنے ہیں تاکہ فائر وال یعنی مس فائبر وال چشمے والی اندھی آنٹی کا معاملہ ٹھیک ہو سکے اور معاملات درستگی کی طرف بڑھ سکیں. واٹس ایپ کا چینل کا لنک جو ہے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کلک کر لیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. نوٹیفیکیشن یہاں نہیں ملے گا، وہاں مل جایا کرے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین. جمعۃ المبارک کی مناسبت سے بہت سارے ایسے بیانات دیکھ رہا ہوں جس کے اوپر مجھے بار بار بولنے کے ملتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کوئی انصاف کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ انصاف نہ دے رہا ہو تو رہ گئی بات، گل ود گئی ہے. مختاریہ والی بات کرنے کو دل کرتا ہے. سب سے پہلی سٹوری ہم شامل کرتے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی خصوصی بینچ نے، عمران خان صاحب نے کپتان نے کال کا اعلان کیا کیا ہے وہ میں آگے چل کر شیئر کرنے لگا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی خصوصی بینچ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک فیصلہ آ جائے کیونکہ بیچ میں جمعہ نماز کا وقفہ ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ زین قریشی صاحب کی درخواست تھی یہ کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اگر یہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو بہت بہتر، ورنہ ریمانڈ کم از کم 8 روز سے ڈمنش کر کے، یہ جتنے دن گزر چکے ہیں اتنے کے اوپر ڈمنش کر کے اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یہ میری رائے ہے، کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. جسٹس عامر فاروق نے آج کیا بولا ہے وہ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد درج مقدمات اور گرفتاریوں کا معاملہ. پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت آج ہوئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کیس کی سماعت کر رہے ہیں. تو سوال کیا چیف جسٹس پاکستان نے، جی تو سٹیٹ آ گئی ہے؟ تو اس وقت یعنی کہ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹو موجود تھے. ایم این اے زین قریشی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاری چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت. عدالت نے زین قریشی کی درخواست بھی دیگر اراکین اسمبلی کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دی. ان تمام لوگوں کی درخواستیں ایک ساتھ سنی جا رہی ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی. اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے بولا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کہ اس ایف آئی آر کا آتھر یعنی رائٹر جو ہے وہ دلچسپ ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی ہے. شعیب شاہین نے پستول رکھ لی، فلاں نے ڈنڈا مارا، بیرسٹر گوہر نے اسلحہ رکھ لیا. یہ کیا ہے؟ کیا میں نہیں جانتا بیرسٹر گوہر کو؟ جسٹس عامر فاروق نے بولا. جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد پولیس کی درج ایف آئی آر پر شدید برہمی کا اظہار کیا. یہ 4 دن بعد ہوا ہے، ویسے 3-4 دن بعد. کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے. جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے. شعیب شاہین پر پستول ڈال دی. شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا. گوہر خان کے کہہ رہے ہیں کہ پستول نکال لی. گوہر کو آپ اور میں نہیں جانتے. کامیڈی آپ نے پڑھ لی، اب ان سے کیا برآمد کرنا ہے چیف جسٹس عامر فاروق؟ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک بس ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے. یعنی جس طرح کی ایف آئی آر لکھی، اور چیف جسٹس عامر فاروق ور لٹرلی آن فائر ٹوڈے. جس طرح انہوں نے آج رگڑا ہے نا اسٹیٹ کے نمائندوں کو، ریپرزینٹیٹیوز کو، پولیس کے اہلکاروں کو، وزارت داخلہ کو، اٹارنی جنرل کو، وہ سننے لائق ہے.
फिर आगे कहते हैं कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है, 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते, कस्टडी दी जाती है, लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमे में मज़हका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया है चीफ जस्टिस। फिर प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो उसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है, जिस पर फिल्म भी बन सकती है। जितना रेस्ट्रेंट करते हैं मुझे पता है। फिर बोला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने जो सुना है वो सुन लिया है, अब इसके ऊपर फैसला महफूज करते हैं। तो फिर फैसला महफूज कर लिया गया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला आज सुनाना है। अच्छा, इसी शद्दोमद के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरफ तो फस्तायत की हद है ना, वो आप और हम देख रहे हैं, लेकिन उधर अडियाला में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो इनको छोड़ नहीं रहा। उन्होंने जो 24 घंटे के अंदर इंतहाई अहम बयान दिया है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, आज़ादी कानून की बालादस्ती और जमहूरियत से मिलती है। अवाम को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, अब जिहाद का वक्त है। इमरान खान साहब के जुमले हैं कि अवाम को अब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, ये जिहाद का वक्त है, इससे पीछे नहीं हटना, वरना तो वो काम शुरू होने लगा है। अब वो जाने की बातें जाने दो, पहले एक लगता था बैनर, अब अमीरुल मोमिनीन के बैनर्स, तो ये काम शुरू होने लगा। तो इमरान खान कहते हैं कि सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, इनको शर्म नहीं आती, ये असेंबली में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी बीवी भी गैर कानूनी तौर पर जेल में है। इमरान खान, पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर ऐलान जल्द किया जाएगा। तो इमरान खान ने इस सारी सिचुएशन के अंदर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है, यानी बाकायदा तौर पर अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको और पब्लिक को, टाइगर्स को, उन्होंने ये कह दिया है कि आप लोग तैयार रहें, किसी भी वक्त वो पॉलिटिकल स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर सकते हैं। पुराने तरीके की वो लॉन्ग मार्च हो सकता है, वो धरना हो सकता है, या स्ट्रीट लेवल के ऊपर आर्टरीज को बंद करना हो सकता है। इसका ऐलान इमरान खान जल्द करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है, अदलिया से कहता हूं कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। उन्होंने अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुतालिक कहा, इमरान खान ने पहले तो सवाल किया गया, अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद सहाफ़ियों की ज़िंदगी को खतरा ला के आप पॉलिसी पर बयान देंगे? उसके ऊपर इमरान खान ने कहा, मेरे पास सिर्फ PTV दस्तियाब है, सोशल मीडिया तक मेरी रसाई नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 अखबारात आते हैं, सोशल मीडिया के बारे मुझसे ना पूछें। सोशल मीडिया एक समंदर है, मुझसे उस बात के बारे में पूछा जाए जो मेरा इल्म है। आप लोग जो काम कर रहे हैं ये जिहाद है, यानी सहाफ़ियों से कहा। फिर कहा, कोई पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तारीख की कम तरीन सरमायाकारी आई, पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इमरान खान, फिर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, अब इस इदारे पर भी हमलावर हो रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये सब अपनी पावर के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने मजीद कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाती मफाद के लिए याह्या खान ने मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को धोखा दिया। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की पहले से तैयारी थी, अपनी ज़ात के लिए 50,000 पाकिस्तानी मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और मुल्क टूटा। इमरान खान, फिर इमरान खान यहाँ पर कहते हैं, रावलपिंडी के कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को जिम्मेदार करार दिया था। काजी फायज ईसा को इनाम के तौर पर फिर से मुसल्लत किया जाएगा। काजी फायज ईसा इंतखाबी धांधियों को नहीं खुलने देगा। इमरान खान ने कहा कि काजी फायज ईसा ने हर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमारी ह्यूमन राइट्स को यानी पटिशन को नहीं सुना गया। काजी फायज ईसा जुल्म का हिस्सा बना रहा, हमारे इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को PTI पर जुल्म के इनाम के तौर पर चेयरमैन PCB बनाया गया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी ने PTI पर जुल्म किए। ज़िले शाह के कत्ल में मोहसिन नकवी और IG पंजाब शामिल हैं। ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के 26 निशानात आए हैं। PTI को जो भी दबाता और जुल्म करता है उसे अरबों का फ़ायदा दिया जाता है। कोई बता दे मेरी बीवी को किस जुर्म में जेल में रखा गया? सिर्फ एक आदमी की अना की वजह से बुशरा बीबी जेल में है। वो नवाज शरीफ को दुबका कर मुल्क में रोका गया है, वरना वो अब तक लंदन में महफूज मकाम पर मौजूद होते। पूरी पार्टी तैयार रहे, पूरी पार्टी को तैयार रहने का हुक्म देते हुए कि सड़कों पर आने का ऐलान मैं जल्द करने लगा हूं, अब इसके ऊपर पीछे हटने वाली बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ हो सकता है कि साजिश हो। अच्छा, जो साजिश की बात है वो मैं बता देता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब
कि जो पार्लियामेंट है वो खुलकर उनका साथ दे रही है, उनके हक में नारे लगाए गए हैं। तकारीर का लेवल थ्रेशोल्ड आप सबने देख लिया है, लेकिन वफाक के अंदर भी एक खिचड़ी पक रही है जिसमें सिंध उसका साथ दे रहा है। अली अमीन गंडापुर की तकारीर के खिलाफ सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर भी हो गई है। तो सोच लीजिए कि सब कुछ कहाँ से चल रहा है। और गवर्नर राज हमेशा पीपल्स पार्टी की तारीख है, गो के इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इनके लिए जब मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए इस पे भी कान धरने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में शायद ये वाला मामला भी हो सकता है, जो कि स्ट्रीट पावर को मजीद, स्ट्रीट पॉलिटिक्स को मजीद तकवीयत देगा अगर ये होता है। तो ये बताना आपके लिए जरूरी था। अब मैं कुछ सहाफ़ी हज़रात की बात कर लेता हूँ। मुनीर फारूक साहब जो है ना, वो उन्होंने एक मुल्क के सूबे के आईनी वजीर आला से मुतालिक बात की है कि एक वजीर आला वहाँ से रगड़ा खा कर गए हैं, फिर दंदनाना शुरू कर दिया वहाँ जाकर और अपनी औकात भूल जाते हैं। कुछ इस तरह के जुमले हैं, कोट एंड कोट मैं नहीं कह रहा, मफहूम आगे पीछे हो सकता है, मैं माजरत खाऊँ अगर हो सकता है तो। लेकिन एक आईनी सूबे के वजीर आला और आईनी हैसियत में वो काम कर रहे हैं, उनसे मुतालिक रगड़ा खाने जैसा जुमला, यानी आप किसी सूबे के वजीर आला की आईनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए साबित कर रहे हैं। अव्वल तो आप साफ़ी हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। आप एक कानून दान थे, उसके बाद आप ओपिनियन मेकर के तौर पर आए, लेकिन अगर आप फिर भी ये काम कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं या जो मुंह में आए आप माउथ पीस बने हुए हैं। ये मुनीर फारूक साहब के स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर शदीद वावेला मचा हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब ने एक कॉमेंट किया कि 4-5 आइन साजों और सरदार अयाज सादिक के ऊपर कमेंट करते हैं, इन आइन साजों को कोई खबर करे कि आइन में चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी इंसानी हक करार तो दिया था, मगर खुद आइन साज पार्लियामेंट की चादर फाड़ कर और चार दीवारी फलांग कर अंदर घुस कर अरकान असम्बली को घसीट कर बाहर निकाल कर गिरफ्तार किया गया। और अयाज सादिक नामी स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मैं अभी सोचूंगा कि अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दूँ या नहीं दूँ जनाब। और इसका जवाब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बोला था ना, मैं आ रहा हूँ बैंड बाजा लेके आ रहा हूँ और हम बारात भी साथ लाते हैं, ढोल भी साथ लाते हैं, उसके ऊपर सनम जावेद बोलती हैं मरियम नवाज अली अमीन तुम्हारे घर तो नहीं आ रहा कि तुम नहीं आने दोगी, वो लाहौर आ रहा है, ये तुम्हारे बाप का सूबा तो नहीं है। ये सनम जावेद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला है। 2-3 चीज़ें मैंने रखनी थी। साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $65 फी बैरल पर आ गई हैं, यानी तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर। इस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त 120-125 रुपए से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम होती है, 10 रुपये कम होती है। ये अलमिया है क्योंकि बाकी पैसा तो शायद सरकार की अयाशियों में ही सर्फ होता है। इरशाद भट्टी साहब की मैं बात ज़रूर करूँगा, उन्होंने ख़त्म शुद्ध को ख़त्म शुद्ध पढ़ना जो सिखा दिया है ना, मैं दिल के अरमान ठंडे हो गए कसम से। टीवी के ऊपर उन्होंने बताया ख़त्म शुद्ध आपका सिर्फ इमरान खान पे ही ख़त्म होता है भाई, कहीं और ख़त्म नहीं होता। फिर उन्होंने गिनवा दिया शुरू से लेकर आखिर तक। वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ पड़ा है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूँ। इमरान रियाज खान साबिर शाकिर को जवाब देते हैं। साबिर शाकिर ने एक तराशा शेयर किया हुआ है, डॉलर्स कमाने के लिए यूट्यूब पर झूठ बोला जाता है, चीफ जस्टिस का तराशा है, साबिर शाकिर ने शेयर किया हुआ है। उसके ऊपर साबिर शाकिर कमेंट करते हैं काजी साहब की नज़र भी सहाफ़ियों की तनख्वाहों और आमदनी पर ही लगी रहती है जनरल बाजवा की तरह। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं नून लीग के बकौल तो जनरल बाजवा तो एक्सटेंशन भी मांगा करते थे। ये इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया हुआ है। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब जो हैं उनके मुतालिक भी आवाज़ आप उठाते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं आवाज़ उठाएंगे तो वो जुडिशल कस्टडी में है। शाम के व्लॉग में थोड़ा सा लेट होगा, शाम का व्लॉग मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी रखूँगा, कुछ यूट्यूबर ने जो बकवासियात की हैं औरिया साहब से मुतालिक, और उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो अभी इस वक्त जो लकी मरवत पुलिस है, इतलात ये आ रही हैं कि लकी मरवत में 4 रोज़ से जारी पुलिस का धरना ख़त्म हो गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुज़ाकरात में मरवत कौमी जिरगा के मुशरान ने अहम किरदार अदा किया है और ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारे 6 दिनों के अंदर अंदर लकी मरवत से निकल जाएंगे। अब ज़राए से खबर है, इसकी कंफर्मेशन वक्त के साथ साथ आती रहेगी। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।